हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे एनसिस वर्क बेंच का सेशन नंबर 13। सेशन नंबर 13 में हम थर्मल एनालिसिस के बारे में जानेंगे। So linear thermal conduction or convection problems are formulated using the finite element approach with temperature as the single degree of freedom variable at each node in the mesh, and with the material condition properties used to form the thermal stiffness matrix to be solved. NC Workbench includes capability of for modeling many types of thermal and thermal stresses problem of interested to practicing engineers. The temperature distribution found at each thermal analysis node can be used with the equivalent structural model as input for finding stress caused by the temperature changes. So the important terms used in thermal analysis. Transient thermal analysis determines the temperature and other thermal quantity that vary on over time. Many heat transfer applications involve transient thermal analysis, such as heat treatment problems, electronic package design, nozzles, engineering engine blocks, pressure vessels. Types of thermal analysis. ANSYS supports two types of thermal analysis. First is steady state thermal analysis, which is determine the temperature distribution and other thermal quantity under the steady state loading condition. A steady state loading condition is the situation where heat storage coefficients vary over period of time can be ignored. Second is the transient thermal analysis determines the temperature distribution and other thermal quantity under conditions that vary over a period of time. So the steady state thermal analysis of car disk rotor. A disc brake consists of a cast iron disc rotor bolted to the wheel hub and a stationary housing called a caliper. The caliper is connected to a stationary part of the vehicle like the axle casting or the stub axle as is cast in two parts, each part connecting a piston. In between each piston and the disc, there is a friction pad held in position by retaining pins, spring plates, etc. Passages are drilled in the caliper for the fluid to enter or leave each housing. The passage is also connected to another one of the blading. Each cylinder contains rubber sealing ring between the cylinder and the piston. तो हम कार डिस्क ब्रेक रोटर के बारे में एनसिस आज करेंगे स्टेडी स्टेट थर्मल एनालिसिस पे। तो सबसे पहले हम यहाँ से हमारे पास जो प्रोजेक्ट अवेलेबल है उनमें से थर्मल स्टेडी स्टेट थर्मल वाला प्रोजेक्ट यहाँ से पिक कर लेते हैं एंड दिस ज्योमेट्री से हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं। एक ज्योमेट्री है जो कि हम इंपोर्ट करेंगे डायरेक्टली, तो यहाँ पे हम इसे रीनेम कर सकते हैं कार डिस्क रोटर ब्रेक। तो next is engineering data. Open the engineering data.
So open the engineering data and geometry. So this geometry is designed by this geometry was imported. First, we designed the car disc rotor. So next, we will open the model, double click the model and open the model. So our geometry is properly imported. यहाँ पे हमारी ज्योमेट्री यहाँ पे अच्छे से आ चुकी है. फर्स्ट हम ज्योमेट्री में मटेरियल सॉलिड पे मटेरियल ऐड हुआ है ये यहाँ पे चेक कर लेंगे. स्ट्रक्चरल स्टील एज ए डिफॉल्ट मटेरियल हमने यूज किया है. नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे मैश क्रिएट करेंगे, जनरेट मैश. फर्स्ट ये डिफॉल्ट मैश यहाँ पे हो चुका है. अगर हमें मैश में अगर इसकी साइजिंग करनी है तो हम यहाँ पे साइजिंग कर सकते हैं. फर्स्ट यहाँ से रेजोल्यूशन हम बढ़ा देंगे, 4 रेजोल्यूशन करेंगे एंड इसका डिफॉल्ट साइज जो है हम यहाँ से इंक्रीज करके अप टू 8 कर लेते हैं एंड देन अपडेट. सो ये मैशिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है. यहाँ पे इसकी साइजिंग हो चुकी है और इसके जो मैशिंग एलिमेंट है वो यहाँ पे स्मॉल साइज में कन्वर्ट हो गए हैं. नेक्स्ट स्टेडी स्टेट थर्मल में यहाँ पे हम कुछ चेंजेस करेंगे, यहाँ पे कुछ ऐड करेंगे. फर्स्ट एनालिसिस सेटिंग्स में हम यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स में यहाँ पे से 2 कर लेते हैं एंड देन स्टेडी स्टेट थर्मल में हम यहाँ पे ऐड करते हैं फर्स्ट टेम्परेचर. सो टेम्परेचर अप्लाई करने के लिए हम ये वाला फेस ले लेते हैं, अप्लाई एंड यहाँ पे मैग्नीट्यूड अप टू हम यहाँ पे 80 रख लेते हैं, 80 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट जो है यहाँ पे हम कन्वेंशन ऐड करेंगे. कन्वेंशन में जो है अंदर की फेसेस हम सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरह एंड देन अप्लाई. और यहाँ पे कन्वेंशन टाइप में इसे इंपोर्ट टेम्परेचर डिपेंडेंट कर लेते हैं. फर्स्ट इंपोर्ट जैसे ही हम कन्वेंशन में सैंपल यूज करते हैं तो यहाँ पे स्टेंजेंट एयर हॉरिजॉन्टल सिलेंडर यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है, इसे ओके कर लेते हैं. जैसे हम ओके करते हैं तो यहाँ पे जो है हमारा मल्टीपल कन्वेंशन कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है जनरेट हो चुके हैं. 1 to 10, 1, 10, 100, 200, 300, 500, 700 एंड 1000 तक यहाँ पे इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट जनरेट हो चुका है. नेक्स्ट सोल्यूशन में हम यहाँ पे कुछ सोल्यूशंस ऐड करते हैं. फर्स्ट थर्मल में हम यहाँ पे टेम्परेचर ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे टोटल बॉडी ले लेते हैं एंड अप्लाई. नेक्स्ट यहाँ पे एक और टेम्परेचर यहाँ पे ऐड कर लेते हैं जो कि हमें डिस्क का अपर वाला फेस चाहिए. दिस सिलेक्शन अप्लाई, इसे सॉल्व कर लेते हैं. सो हमारा यहाँ पे टेम्परेचर टोटल बॉडी टेम्परेचर यहाँ पे जो है मैक्सिमम लिमिट है इसकी 80 मैक्सिमम लिमिट है और इसकी मिनिमम लिमिट जो है वो 26.78758 तक यहाँ पे जनरेट हो चुकी है. यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका एंड देन हम इसे एनिमेट करके देख सकते हैं. ये कुछ इस तरह का कार्ड डिस्क टोटल ब्रेक की टोटल बॉडी टेम्परेचर यहाँ पे शो हो रहा है. नेक्स्ट जो है इसका अगर हम टेम्परेचर 2 देखते हैं तो ये अपर सिलेंडर बॉडी पे है ओनली. तो इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 64 है एंड मिनिमम लिमिट इज 31
और इसकी जो एवरेज वैल्यू है वो 42.842 है। सो इसे हम एनिमेट करके देखते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे एक और सॉल्यूशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं हमारे प्रॉब्लम में, थर्मल में टोटल हीट फ्लक्स भी हम हमारी बॉडी का जनरेट कर सकते हैं एंड देन सॉल्व। तो ये हमारी टोटल बॉडी का टोटल हीट फ्लक्स जनरेट हो चुका है। मैक्सिमम वैल्यू इज 0.000523 है एंड मिनिमम वैल्यू इज 9.42 है। द एवरेज वैल्यू इज 1.3147 है। तो कार डिस्क रोटर ब्रेक जो है हमारा, वो टोटल हीट फ्लक्स जनरेशन जो है इसका, वो इस टाइप का है। एंड देन एनिमेटेड अगर हम इसे शो करते हैं तो वो कुछ इस तरह शो होगा। तो आज हमने थर्मल एनालिसिस में एक कार डिस्क रोटर ब्रेक का एनालिसिस किया है, जिसका हीट टेम्परेचर, टोटल टेम्परेचर, फुल बॉडी टेम्परेचर, वन फेस टेम्परेचर एंड टोटल हीट फ्लक्स जनरेशन हमने चेक किया है।